हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। कहते हैं जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोग निर्भय होकर लड़ते हैं। आज मैं आप सभी को एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रही हूँ जो स्ट्रेंथ, ब्रदरहुड, स्पिरिट, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, सेल्फलेस, करेजियस, सर्विस, फियरलेस, फॉर्टिट्यूड, ऑनर एंड इंटीग्रिटी का एक बेहतरीन मिसाल है। We are so pleased and honored to have former DGP of Tamil Nadu, Shri S.R. Jangid sir, an IPS of 1985 batch. Such a pleasure to have you, sir. Welcome to Study IQ. Thank you. In today's session, we will be discussing about the most courageous career of Sir. Also, to all the aspirants who are connected with us, he'll guide you through your preparations. So we are so elated and very excited for this session. Thank you. So starting with the very first question. You come from a very decent background and reaching to the post of DGP in Tamil Nadu. When you look back at such an extraordinary career, how do you feel? Is it the feeling of satisfaction? Yeah, it's true. I am from a very simple farmer family, agriculture family, from a village near Pakistan border in Badmer district of Rajasthan. And coming from that to joining the IPS, that is the highest civil service of the country, and then coming to this in the police, this highest rank, it was really a great satisfaction. More than that, the what went during this journey, that was more important, that was more satisfactory. Particularly some posts where there was a lot of challenges, and we met those challenges that gave a lot of satisfaction. Say, for example, as a SP rank, my tenure as SP of Kadalur district, it was around 3 years. Then SP of Tirunelveli district, then SP of Tuticorin district. These are all very challenging districts of Tamil Nadu. And I am proud to have worked as SP of these three districts. And I'm thankful to the government of Tamil Nadu for having given me the opportunity. And there you see, uh, it gives so much of satisfaction, because how the satisfaction comes, when you give some relief, you get satisfaction. And there are only the two jobs which give instant relief. One is the doctor, one is the policeman. I feel these are the two important jobs which can give immediate relief to somebody if they want. So we give the immediate relief. And there were so many incidents were there when we see the families crying, when somebody has been killed, murdered, we go, we take action. And we cannot bring back the life of a person, but then still we can go and take action to arrest the criminals. We can produce them in the court, we can get them conviction. So all these things relief measures. There are so many type of the grievances are there with which the people come to us. We take relief. We give them relief as per law only. There are so many cases which you are not able to do. Like there are civil cases, somebody has cheated somebody, or they have taken the money and not returning back. Maybe some civil issues where we may not be able to intervene. But then many of the cases within the framework of law, we interfered, we intervened, and then we brought relief for the people. And that relief gave us a lot of satisfaction. So I feel there was a great satisfaction in all the assignments which were given to me. I did the service to the people and derived satisfaction out of that. So, a very famous case of your career, you have cracked the Bavaria group, which was very prominent and it was making a huge disastrous throughout India. Also, for all the viewers, a movie named as Thiran is made on that case, and Sir's character is played by a very famous actor. So, can we know about the case from the man himself who cracked this extremely important case? Yes, that is true. um, it was an important case, and there are many important cases which actually go unnoticed. Uh, as I told you earlier, in my SP tenure, there were so many cases which were very challenging. With a lot of efforts, we had to solve those cases. But then they get forgotten in due course. But this particular case, one of the reasons was that because there is a sensitivity involved in this.
Around 11 years, there were case after the case, crime after the crime was getting reported, and there was no solution. Nobody was knowing who is committing that. Second thing, it was creating a lot of sensation. After the incident take place, there were a lot of sensation. So many VIPs are targeted. So many innocent people are targeted. So, and there is no clue outside. So that was creating a lot of sensation and going on for years, and not only in Tamil Nadu, but it was in other states also, including North India, in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, all over. So all these cases with so much of sensitiveness and it going on. And when we started this case, we started from scratch. We had no information. It was after the killing of one of our sitting MLA that time in 2005, January, around 9th January 2005. One sitting MLA who was earlier minister also, he got killed by the same gang, and a lot of family members were injured, and they committed dacoity of a lot of valuables. So with that, when we started, now why it become so famous? The the sensitivity, as I told you, in this we had to track all over the country, particularly 5 states. We focused on 5 states finally. That is Uttar Pradesh, Rajasthan, Haryana, Delhi, and Punjab. And for every small clues we picked up, and with that we developed the evidences, and we secured the criminals. In all total, and it took around 1 year to uh, from the arrest of the first accused to the last accused. And in between, we encountered two accused in the outskirts of Meerut in Uttar Pradesh. Two people were encountered by police. So total there were 15. Out of that, 13 we secured, and two were encountered to death. So this the one of the most important thing of this case is the perseverance with which we had worked, the teamwork of the Tamil Nadu police, and the adversities with which we worked. The Tamil Nadu police people, they don't know the language, they don't know Hindi, but then we have to work in the Hindi heart belt. You can understand how difficult to even to talk to one informant and gather information with that. And they are not conversant with this food habits also there. There's a different food habits. Here they eat only the rice and everything. There, when we were traveling in the villages, we don't get this type of food. There's a different foods, tandoori and all the things used to be available. And then the climate also. We had in Tamil Nadu, we don't have winters like this. And we started in January, so you can understand that it was a peak of winters in North India. So many adversities. With these adversities, my team, Tamil Nadu police people team, the way they worked hard, it was amazing. And that is why when we secured, we had a lot of satisfaction of securing the criminals and solving the cases. And not only we solved the cases, but we put an end for the future incidents also. Another thing I want to tell you, though it was a very amazing detection, but this completed in 2006, 2005 and 6, 2 years, work was completed. But many people outside did not know till 2017, 11 years. 11 years after when this movie was released, Dhiran, as you told rightly, Dhiran, that's a Tamil movie. Same day, it was released in Telugu also. In Telugu, name was Khaki. And later on, it was dubbed in Hindi by name Dhiran. It was very famous. This was entire our work in this Bauria related work, which was shown in this movie. So after that, it became very famous. So you see, you should be lucky. Not only you are doing the work, but you should be also lucky their work is recognized and known to the people. So we were lucky that our work also got known to the people through this movie. So that is how you all came to know about this. So it was also a great satisfaction. Yes. uh, while Sir was describing, I could have imagined his position because I've seen that movie, and it's a great, it's wonderful to see about how every use of clues have been used for cracking the case. So it was wonderful, and for all the viewers, you can watch that movie and get the amount of hard work, the amount of perseverance our police department puts in. Yes. Thank you.
Sir, as you rightly mentioned, IPS is one of the most respectable services in India, and various opportunities are provided. You have been part of UN peacekeeping mission. Can we know more about the UN peacekeeping mission and how it actually works? Uh, See, this was in 1994 when I was superintendent of police. There were 5 officers of superintendent of police rank were sent from India. I was one among them. I was from Tamil Nadu. One was from Gujarat. One was from Manipur. Like that, total 5 we were sent. And we went to this UN mission that was based at Luanda. Luanda, that is a country, Angola. It's the capital of Luanda. We landed at Luanda. Before that, we had gone to Ethiopia also. Now, see, it was our role was only civil police observers. We were civil. There are type of observers. Peacekeeping forces, they have to fight the battle. Like army, Indian army, BSF, all these people, they go there. They have to fight the real battle. We are the civil observers. We have to we are not supposed to go with the weapons there. We have to just observe it. And we have to keep the UN headquarters informed about what is happening here. So we are basically observers there. So coordinate between them and keeping them informed and also suggesting them what is the efforts to be taken further. And Angola was it's a riot-torn country at that time. I don't know now. Actually, I don't know what is stage now there. But that time there was so faction flutes were there, and in this fjord, thousands and thousands people got killed. Even the government forces were not able to go beyond 5 kilometers of Luanda. After that, landmines were laid there, roads were blocked, and that territory will be occupied by the terrorists, insurgents. So they told us not to go beyond this particular limit. We were not going. We were always, finally, it was under the command of the commander. He was Lieutenant General from Fiji, I remember, Fiji. He was the overall commander. So commander will give us commands how we have to, where we have to work, what are the type of work we have to do, and we have to report to the commander, who in turn will keep the UN headquarters informed. So it was a good exposure to be working there in the other country. सर जैसे हमने आपका यूएन पीस कीपिंग मिशन का एक्सपीरियंस सुना एंड इट वाज रियली अमेजिंग एंड एंथ्रिलिंग ऑन एवरीबॉडीज पार्ट सर हमारे साथ बहुत सारे सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट कनेक्टेड हैं और अगर आप हमें बताएं कि अभी जो सिचुएशन है यूएन पीस कीपिंग मिशन की many western countries are reluctant over sending their peacekeepers. So Yeah. can we know what is the entire scenario right now prevailing and how this seems to have a balance? See, what is the attraction for going for this UN peacekeeping? I tell you very frankly, the attraction is that there's a good amount of money is paid. That's why from soldier to higher rank officer, they go for the peacekeeping forces. Now see what happened. This is a uniform amount is being paid. That time it was $105 a day. Okay. Apart from the salary we get in India, this is extra amount being paid there. Now what happened? $105 is a big amount for anybody going from India. But if anybody coming from Europe, it's a very small petty amount. They will not come for that. Coming from US, just not possible. They get much bigger amounts there itself. So that is why I saw in peacekeeping forces, mostly the soldiers and the officers, they were all from the developing countries. Nobody from developed countries, nobody from European countries. So that is a major reason. Because if you are going for the service of your country, then you work within your own country. That's a different. Here we are working. We go for the even how our armed forces are working in Pakistan border. They fight with terrorists. They lose their life. How brave act they do. That they fight for country. There's a एक गौरव होता है कि मैं मेरे देश के लिए मर रहा हूँ. लेकिन वहां पे जाकर अगर आप मरते हैं तो किसके लिए मर रहे हो आप? That type of feeling is not there. Definitely that feel that I'm fighting for my country. No, that feeling. You are fighting for somebody's country. That feeling is not there. That is why the mostly people go from here
or from any other country, for mostly with which we were working, mostly people are from India, Pakistan, Bangladesh, and Africa's very poor countries. So all these things, nobody was from Europe or US. So the major reason was only this finance. And then there is a risk involved also there. सर आगे चलते और बात करते हैं. हमने ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस को कई बार देखा है, दे आर नॉट ऑन द सेम फुटिंग. But there is a very interesting incident between you and former Chief Minister of Chhattisgarh, Shri Ajit Jogi ji. तो सर क्या आप वो इंसिडेंट हम सभी के साथ शेयर कर सकते हैं? हाँ, देखिए कि इट इज ट्रू कि कई बार ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस एक पेज पे नहीं रहते हैं, एक साथ नहीं होते हैं. इट इज ट्रू. इसका दोनों ही तरफ रीजंस होते हैं. कई बार क्या होता है, ब्यूरोक्रेट्स इतने अपना जो काम करते हो इतना ईमानदार से नहीं भी हो उनका. अगर आप बिल्कुल एथिकली ऑनेस्टली अगर कोई काम कर रहे हो तो हो सकता है कि the politicians may not go against you, but at the same time you may be very honest, you may be very ethical, but then there may be maturity lacking among some politicians. You can't help, you will again become target. So the both way there is a problem, but I feel that in general terms मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर जो ब्यूरोक्रेट्स अगर ईमानदारी से अपना प्रोफेशनल काम करते रहें तो पॉलिटिशियंस को आराम से टैकल किया जा सकता है. वो ट्रांसफर कर सकते हैं आपको, कोई बात नहीं, आप कहीं और चले जाइए. ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सो कॉल्ड प्राइज पोस्ट पे आप बैठना चाहें. तो ये तो आपको एक ट्रेड ऑफ एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको. तो इसलिए अगर ब्यूरोक्रेट्स के लिए मेरे को एक ही सलाह है कि अगर वो ईमानदारी से और अपना प्रोफेशनल काम करते रहें तो पॉलिटिशियन के साथ में कोई ज्यादा प्रॉब्लम होने की ज्यादा चांसेस नहीं है. अगर होगा तो भी वो टेम्पररी होगा, बाद में ठीक हो जाता है. ये तो पहले. दूसरा जो आप इसी क्वेश्चन का जो दूसरा आपने जो पार्ट बोला था कि अजीत जोगी साहब का जो बोला था आपने, तो ये देखिए मेरा उनका जो मीटिंग, इट वाज ए चांस एनकाउंटर. मैं पहले डिस्ट्रिक्ट का एसपी था, मेरा पहला डिस्ट्रिक्ट था एज ए एसपी. ये 1990 की बात है, 1990 की बात है. डिस्ट्रिक्ट वाज नीलगिरीज, ऊटी. आई वाज एसपी ऑफ नीलगिरीज इन ऊटी. उस वक्त पहली बार सरकार ने यह किया था कि पेट्रोल की डिमांड को कम करने के लिए यह किया था कि सैटरडे और संडे को जो है पेट्रोल बंक सारे बंद रहेंगे. बहुत ही इमरजेंसी यूज के लिए ही पेट्रोल या डीजल सप्लाई किया जाएगा. और इमरजेंसी यूज के लिए कलेक्टर या एसपी सर्टिफिकेट देगी इमरजेंसी है तभी फ्यूल किया जाएगा, नहीं तो गाड़ियां सब खड़ी रहेगी. ये पेट्रोल का कंजम्पशन कम करने, डिमांड कम करने के लिए एक मेजर उस वक्त सरकार ने किया था. ये पूरे इंडिया में थोड़े दिन चला था ये. तो मैं सैटरडे में बैठा था मेरे ऑफिस में, तो ये अजीत पी के जोगी साहब आए और उन्होंने एक कार्ड भेजा अंदर कि वो एमपी साहब आए हैं मध्य प्रदेश से. तब झारखंड नहीं था, मध्य प्रदेश था, ये कि कमांड स्टेट था. तो मैंने पूछा, मैंने कहा एमपी खुद आए या किसी को भेजा है, क्योंकि कई बार स्लिप और दूसरों को भी देके भेजते हैं. तो क्या पता नहीं, एक लड़का खड़ा है जीन्स पहने हुए. तो मैंने उनको बुलाया अंदर, तो के साहब मैं हूँ अजीत पी के जोगी. तो बैठिए साहब. मैंने बैठाया, मैंने फिर उनसे बात की. तो उन्होंने पेट्रोल की कहा, तो मैं कहा मैं आपको स्लिप दे के लेता हूँ, आपको पेट्रोल दे दिया जाएगा आपको. फिर उन्होंने, वो आए थे इसलिए क्योंकि उनका बच्चा जो पढ़ रहा था ऊटी में, और वो एक पार्लियामेंट कमेटी की मीटिंग थी उसमें आए थे, फिर अपने पर्सनल काम अटेंड करते हुए जा रहे थे वापस. जब उनसे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने ये कहा कि ये करके मैं जब स्लिप दिया तो मैंने कहा आप चाय पीना चाहोगे, तो आई डोंट माइंड. तो मैंने चाय पिलाई उनको, क्योंकि ऊटी में ठंडक होती है तो चाय अच्छी लगती है. तो जब उन्होंने मेरे को पूछा, चाय पीते उन्होंने मेरे को पूछा कि मेरा बैचमेट, उन्होंने दो जनों का नाम बताया, 1968 बैच के जो आईपीएस ऑफिसर थे, वो कैसे है आप मेरे बैचमेट. तो मैंने कहा वो आपके बैचमेट कैसे हुए, तो कि मैं आईपीएस था पहले. तो मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ. मैंने कहा साहब आप इतने सीनियर थे, तो क्या? तो नहीं, उससे पहले मैं आईएएस भी था. नहीं सॉरी, आईपीएस था, उसके बाद में मैं आईएएस भी था. तो 1967 में वो आईपीएस थे. अगले साल उनका आईएएस में सिलेक्शन हुआ. 1968 में वो आईएएस में थे, इंदौर के कलेक्टर थे 5 साल तक. फिर वहां पे उन्होंने जो
कोई उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, फिर उनको एमपी बनाया गया, उसके बाद में वो सारी स्टोरी बना देते हैं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा साहब आपको आप आईएएस भी रहे, आईपीएस भी रहे, अभी एमपी भी है आप, तो मतलब हाउ डू यू फील? तो उन्होंने मेरे को कहा था कि लाइफ इज टू बी लिव्ड ओनली वंस, तो लेट मी हैव टेस्ट ऑफ all services, all things in the life. So that was one. I don't know how you came to know about this incident. This was one of the small incident which I sometime narrate. That okay, people are so, you know, they actively एक जगह से दूसरी जगह आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस तरह से I had narrated in one of my speech somewhere. Maybe you would have picked up from there somewhere. Yes. बहुत ही मजेदार इंसिडेंट, और सर आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि हम एक बार ही लाइफ जीते हैं एंड वी मस्ट ट्राई एवरीथिंग एंड गिव अ चांस टू एवरीथिंग दैट कम इन फ्रंट ऑफ अस, ऑल द अपॉर्चुनिटीज। Yes. सर आगे बढ़ते और बात करते हैं, रीसेंट कुछ टाइम्स में हमने देखा है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम हैदराबाद इनकाउंटर की बात करें, चाहे यूपी विकास दुबे केस की बात करें, आपको क्या लगता है, क्या हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को जस्टिफाई कर सकते हैं चाहे कितना भी इंटेंस केस हो? देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, तो इट इज अ किलिंग, इट इज अ मर्डर, you cannot justify, and you should not try to justify at all. See, you should understand that what they are calling this extra judicial killing, ये पुलिस एनकाउंटर को ये कहते हैं। पुलिस में जब एनकाउंटर होता है, मुठभेड़ होती है, कोई आदमी मारे जाते हैं पुलिस से, तो कई बार कहते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। अब देखिए कि आपने जो अभी रिसेंट पास्ट में आपने देखी होगी, सुनी होगी एक दो इंसिडेंट्स यूपी में, मध्य प्रदेश में वगैरह, तो अब उसको अगर वो एनकाउंटर, देखो ऐसा होता है कि एनकाउंटर की सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी प्रोसीजर लेकर रखी उसकी इंक्वायरी के लिए। तो अगर एनकाउंटर होता है तो उसमें बहुत सारी प्रोसीजर होती है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उसके बारे में इंक्वायरी करता है, कोर्ट्स होते हैं इंक्वायरी करते हैं, और उसकी जो इंक्वेस्ट होती है, यानी कि जो डेथ की इंक्वायरी होती है एनकाउंटर की, वो शुरुआत जुडिशियल मजिस्ट्रेट से होती है। वो पहले की तरह से नहीं है कि सब डिविजनल रेवेन्यू मजिस्ट्रेट वो कर देते हैं, ऐसे नहीं होता है। तो इंक्वायरी वहीं से होती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से शुरू होती है। तो इतना आसान नहीं है कि आप किसी को मार करके और आप जस्टिफाई कर दे, ऐसे नहीं होता। उसमें कई सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती है इंक्वायरी के लिए। अगर इंक्वायरी में प्रूव हो जाता है कि ये गलत था, एनकाउंटर सही नहीं था, किसी को मारना ही सही नहीं था, तब तो फिर उसको यू कैन कॉल इट एन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, नो डाउट। लेकिन अगर इंक्वायरी में अगर ये होता है कि नहीं, एनकाउंटर वॉज जस्टिफाइड, तो उसमें यू कैन नॉट कॉल इट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। सो इन सम आई वांट टू टेल कि सारे जो पुलिस एनकाउंटर होते हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स नहीं होते हैं। अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो जस्टिफाइड नहीं था, उसकी जरूरत नहीं थी ये करने की, मारने की किसी की जरूरत नहीं थी, तो उसको फिर आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग आप बोल सकते हैं उसको। तो इसलिए कि एनकाउंटर के लिए इतना, और ये नहीं है कि रोज का पुलिस मारती रहती लोगों को, ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में जो एनकाउंटर्स होते हैं, कितने टेररिस्ट मारे जाते हैं। तो ये तो और कितने जवान भी मारे जाते हैं, अपने अपने जो फोर्सेस के जो होते हैं मारे जाते हैं लोग। तो उसमें आप देखिए कि अपनी लाइफ को रिस्क करना पड़ता है। दूसरे टेररिस्ट आते हैं, वो आपके ऊपर गोली चलाते हैं, आप उनको गोली चलाते हैं, वो मर जाते हैं, आप एनकाउंटर बोलते हैं। और उसी एनकाउंटर में कई बार अपने पुलिस या आर्मी के लोग होते हैं, जवान होते हैं, ऑफिसर होते हैं, वो जख्मी हो जाते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। तो इसलिए जब लाइफ रिस्क में होती है, देखो अपनी जो जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है लॉ में, उसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में क्या होता है कि आप किस वक्त आप किसी को शूट कर सकते हो, आप एनकाउंटर कर सकते हो उसमें। ये राइट ऑफ प्राइवेट जो डिफेंस होता है, this is not only available to the police forces or the armed forces, it is also available to the civilians also. A civilian, in order to protect his life, he can also use the force which may cause death of the other person. That may be civilian encounter also. तो इसलिए ये सारे कानून के मुताबिक सारा होता है, और उसके लिए इंक्वायरी करनी होती है। इंक्वायरी में प्रूव हो जाता है कि एनकाउंटर वाज जस्टिफाइड, देन वी कैन नॉट कॉल इट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, एंड नोबडी हैज राइट टू डू एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग एनीवे। किसी की लाइफ क्या, आप तो किसी के ऊपर थप्पड़ भी नहीं मार सकते, मतलब यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द लॉ। सो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ टेकिंग द लाइफ ऑफ समबडी? तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का कोई पावर्स नहीं है किसी के पास में, एंड इट कैन नॉट बी एंड इट शुड नॉट बी जस्टिफाइड। लेकिन जो जेन्युइन एनकाउंटर्स होते हैं उसकी इंक्वायरी होती है,
and it has to be done to protect the life and property of the others. Yes. So police department is surely one of the most hardworking department in India. But कहीं ना कहीं आज भी हम देखते हैं कि जो ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए था पुलिस और जनता में, वो आज भी डेवलप नहीं हो पाया है। सर, आपके हिसाब से क्या स्टेप्स लेने चाहिए और क्या एटीट्यूडनल चेंजेस लाना चाहिए टुवर्ड्स द पुलिस? ये सही है कि इतना ट्रस्ट पुलिस के ऊपर नहीं हो पाया है, ये बिल्कुल सही है। वी हैव टू एडमिट दैट। इसका मेन कारण ये होता है कि एक आम आदमी कोई पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट देते हैं, उनकी ये कंप्लेंट होती है कि उसका ढंग से इंक्वायरी नहीं होती है, या तो इंक्वायरी करते नहीं है, एक्शन लेते नहीं है उसके ऊपर, या ढंग से नहीं होती है। तो ढंग से नहीं होने के जो हम कारण एनालिसिस करते हैं, तो मेन दो कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि पुलिस किसी दबाव में आके काम करे, ऊपर से किसी का दबाव हो, इसलिए वो सही काम ना करे और किसी को फेवर करते हैं। दूसरा ये होता है कि करप्शन, पुलिस जो है रिश्वत लेकर के और किसी का सपोर्ट कर रहे हैं, एक पार्टी का। हमेशा पुलिस में इस तरह से कंप्लेंट आती है, उसमें दो पार्टी होती है, एक जो कंप्लेनेंट होते हैं, एक अक्यूज साइड होती है। तो किसी एक पार्टी से मान लो वो पैसे ले लिए उन्होंने, इस तरह की कंप्लेंट्स भी आती है। अब ये दो चीजें जो होते हैं, जब तक ये दो चीजों का प्रिवेलेंस रहेगा तब तक ये ट्रस्ट पुलिस के ऊपर पूरा नहीं आएगा। तो इन दोनों को ही ठीक करने के लिए मैं ये सोचता हूँ कि एक ही तरीका है कि पुलिस जो है ईमानदारी से काम करे और एथिक्स को क्या कहेंगे आप हिंदी में? एथिक्स यू कैन वर्क विद एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। अगर एथिक्स और इंटीग्रिटी अगर पुलिस काम करे तो ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं आ सकती है। मैंने कई ईमानदार अफसरों को काम करते हुए देखा है, बहुत लोअर रैंक पे, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर रैंक पे, जिनका पब्लिक ने हमेशा तारीफ की है उनकी, क्योंकि वो बहुत ईमानदारी से उन्होंने काम किया, किसी दबाव से किसी के खिलाफ गलत एक्शन उन्होंने नहीं लिया। तो यही तरीका है। अब इसको इन्फोर्स करने के लिए क्या क्या करना, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह जजमेंट में जो पुलिस रिफॉर्म्स का जो जजमेंट दिया था, उसमें एक यही था कि पुलिस के ऊपर दबाव नहीं हो, पुलिस फ्री और फेयर काम करे। और जो करप्शन को कंट्रोल करने के लिए कई सारी मैकेनिज्म हैं, तो वो उसमें कई बार जब करप्शन के इंक्वायरियां होती है, उसमें सस्पेंड होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हो जाते हैं, उनको अरेस्ट भी किया जाता है। तो इस तरह से कई सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए जब तक ये दोनों चीजों के ऊपर अगर इफेक्टिव कंट्रोल नहीं होगा, तब तक पुलिस की छवि जो है ठीक नहीं होगी। तो ये दोनों चीजों का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सर, जैसे आपने कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट किए और किस तरीके से कितना इम्पोर्टेंट है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, वो हम सभी को आपने अपनी जर्नी और अपने एक्सपीरियंसेस से बताया। सर, हमेशा हमने पुलिस में देखा है ह्यूमन राइट्स वर्सेस पुलिस का केस हमेशा रहता है, तो किस तरीके से राइट बैलेंस बन सकता है? देखिए, ऐसा है कि अब ये इश्यू हमेशा रहेगा, बना रहेगा, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेते हो किसी के ऊपर, तो ये कहते हैं पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। एक जैसे किसी ने कंप्लेंट दिया कि उसको जो है, उसको किसी ने असल्ट किया, उसको जो है घाव पहुंचा दिया, उसको मारा पीटी की उसकी, एक आदमी आकर शिकायत देता है। अगर उसको तुरंत जाकर आप एक्शन लेते हो और सामने वाले पकड़ते हो और वो पुलिस से अगर मिसबिहेवियर करता है, कंट्रोल में नहीं आता, तो पुलिस को फोर्स यूज करना पड़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए। वो कानून के अंदर हमको परमिशन है उसकी फोर्स यूज करने की। अब उसमें फोर्स यूज करते हैं, वो जाके ह्यूमन राइट्स में देता है कंप्लेंट है कि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर दिया पुलिस ने, उसके लिए इंक्वायरी फेस करनी पड़ती है। और उसको प्रॉपर ढंग से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन ढंग से कर पाते हैं, तो आप आराम से डिफेंड कर सकते हैं। ऐसे कई शिकायत होती रहती है, हर एक एनकाउंटर होते हैं, इंक्वायरी होती है, हर एक जो पुलिस की कई जो एक्शंस होती है, पुलिस की एक्टिविटीज होती है, उनके बारे में कई सारी ह्यूमन राइट्स के ऊपर अब सारे स्टेट्स में ह्यूमन राइट कमीशन होता है, उसके ऊपर सेंटर में एक ह्यूमन राइट कमीशन होता है। इसके अलावा भी और भी कई सारी मैकेनिज्म होती है, जैसे इसमें कोर्ट होते हैं, वो हमारे ऊपर सिविल केस फाइल कर सकते हैं, हमारे क्रिमिनल केस हमारे ऊपर भी फाइल कर सकते हैं। इस तरह से कई सारी इंक्वायरी की एजेंसीज होती है, विजिलेंस इंक्वायरी होती है, क्राइम ब्रांचेस इंक्वायरी होती है। तो पुलिस को ये सारी फेस करना पड़ता है, इसके बावजूद भी एक्शन लेना पड़ता है। अगर हम घर बैठे नहीं, हम एक्शन नहीं लेंगे, तो चलो एक इनएक्शन की ही एक्शन होगी, लेकिन आप एक्शन लोगे तो कई सारी और भी चीजें आ जाती है, ऐसे ह्यूमन राइट वायलेशन वगैरह कई सारी चीज आती है, पर वो फेस तो करना ही पड़ता है।
अगर आप पुलिस में रहना है तो आपको ये फेस करना ही पड़ेगा ये चीजें सारी। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपका इंटेंशन, आपका इरादा ईमानदार होता है तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो पहले आप क्या yes. सर, हमने बहुत सारे पुलिस रिफॉर्म्स आपकी जर्नी के बारे में बात कर लिया। सर, डू यू थिंक सिविल सर्विस इज द बेस्ट करियर ऑप्शंस इन इंडिया? इट प्रोवाइड्स लॉट ऑफ Yes, अपॉर्चुनिटीज। yes, of course, it is the best. In India, I would say that civil services are the best option. I have seen the people working, doctors, engineers, and different fields, working more than 3 times more salaries of the civil servants. They compete for civil services and join the civil services there. So you can understand it is not for money or the salary, quantum of salary they get that people work, but it is the respect. It is the opportunity to serve the people they get. The people want to join the civil services. In Indian civil services, it is the best in the, not in the country, but if you compare with other countries in the world, I think it is the most respected services. And that's why everyone tries for the civil services. You know, there are only 1,000 vacancies, around 1,000 vacancies of all the services joined together. There are around 30, 35 services are there. IAS, IPS, IFS, and there are different services. So every year there are around 1,000 vacancies only. But you know, more than 7 to 8 lakhs people appear for every year. And they're all qualified. They have limited chances. Some people have got only 3 chances. So they exhaust the chance. So not carelessly they appear. They very seriously they appear. But then finally it comes to 1,000 people only. So it's the most challenging and it is the best service in the country. And so, how can you suggest one to prepare for the best? The preparation for the civil services, actually it is the duty of the parents, not the students. I feel the first 7 years or first 9 years of a child's education, that will decide how he can be successful in the career, in getting selected in the civil services. That is, I talk about 70-75%. If their foundation is, they can easily get through. Remaining 25 people, they only by hard work, though they had a, like I did not have a very strong foundation. I studied in the village government school, but then later on I worked hard and I made it up. So that's a different. So it's the duty of the parents that they should educate their children in the first 9 years of their life, that is childhood. They should get the best school. They should inculcate very good teaching, studying habits, and make them brilliant. And then it can start, they can keep preparing themselves and they can get oriented towards the hard work, the excellence, all the things. So, and having come to this, now you are in, suppose you are in graduation or post-graduation, earlier the better. The students should start, when they start preparing for civil services, they say, okay, we have decided to prepare for civil services. And once you know, you have decided this is the best career, whether you are studying in engineering, IIT, or the medical colleges, the ultimate and the best is the civil services. So when you decided, I have to become a civil servant, then what you have to do? The first thing about your own subjects, whichever option you are studying, you should prepare it thoroughly with the basics understanding. See what mistake many students do. They in North India, particularly आप जो कर रहे हो नॉर्थ इंडिया में, ये जो अभी व्यूअर्स है ज्यादातर नॉर्थ इंडिया से है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे बड़ी गलती जो अपने आप स्टूडेंट करते हैं कि वो गाइड्स पढ़ते हैं। गाइड होती है कोई, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में आप बीए कर रहे हैं, तो हिस्ट्री किताब, ओरिजिनल किताब पढ़ने के बजाय गाइड पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती वहीं से शुरू होती है। जब से आप गाइड पढ़ना शुरू करते हैं, मतलब आप बिल्कुल सिविल सर्विसेज से आपने विदाई ले लिया, आपने कभी नहीं जा सकते सिविल में। तो आपको, और कई बार गाइड पढ़ करके और यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स ले आ सकते हो आप, लेकिन आप सिविल सर्विस में पास नहीं हो सकते उससे। तो इसलिए आपको बेसिक किताबें पढ़नी चाहिए हमेशा। जो सब्जेक्ट जो आपका ऑप्शनल है उसकी बेसिक किताबें पढ़िए आप। बेसिक किताबें जैसे आप
+2 की 10वीं 11वीं और +2 की जो आपकी जो 12वीं की जो क्लास होती है, एनसीईआरटी की किताब होती है, वो आप पढ़िए। इसी तरह से जो ग्रेजुएशन में आप पढ़ते हैं या पीजी में जो पढ़ते हैं, एमए या एमएससी में, तो उसमें जो बेसिक बुक्स होती है, जो बेसिक ऑथर की है, ये सही किताब है, उसको रेफरेंस बुक जिसको बोलते हैं वो किताबें ही पढ़नी चाहिए, ना कि इस तरह की गाइड्स वगैरह। मिनिमम किताबें, लेकिन बहुत अच्छी किताबें जो बेसिक, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसी किताब को पढ़ करके, और अगर वो एग्जाम लिखें, तो हो सकता है आपको बीए और एमए में आपके मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं आए, लेकिन सिविल सर्विस के लिए वही सूटेबल रहेगी, उससे आपको मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो एक तो ये है कि बेसिक किताब पढ़ के और फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए सब्जेक्ट के, फंडामेंटल क्लियर करके ही आगे चलना चाहिए। ये पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा ये होता है कि जब आप पढ़ते हो जो ये ऑप्शनल, इस तरह से पढ़ो कि उसके बाद में आपको बस रिवाइज करने के लिए ही आपको टाइम लगे बाद में, क्योंकि कई सारे सिविल सर्विस बहुत वास्ट सा होता है, बहुत ही वास्ट होता है, बहुत बड़ा होता है। उसमें कई 100 टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पेपर्स होते हैं, एक एक पेपर में इतने सारे टॉपिक होते हैं, तो मेरा इतना लंबा होता है कि आपके पास टाइम ही नहीं होता सर तैयारी करने के लिए। इसलिए आपको क्या करना होता है कि ऑप्शनल को पूरा तैयार कर करके कि ये तैयार करने, वो उसके बाद में तैयार करने पड़ते हैं, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है अपने पास में। फिर ये करना चाहिए कि जैसे जनरल स्टडीज है और लैंग्वेज है, तो वो जो है वो एक साथ आप तैयार नहीं कर सकते। कभी चलो एमए करने के बाद में या एमएससी करने के बाद में करेंगे, तो ऐसे नहीं होता है, वो अभी से शुरू करना पड़ता है। जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में है तो तभी से शुरू करना पड़ता है। आप जैसे न्यूज़पेपर है, जैसे मान लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर पेपर है वो दी हिंदू, इंग्लिश का पेपर है दी हिंदू को अगर आपने प्रिस्क्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं डेली, तो आप उसको उसका पहले पेज से लास्ट पेज तक उसको स्टडी करना चाहिए, रीडिंग नहीं स्टडी करना चाहिए, यानी कि उसको समझना, पूरा पढ़ना, उसकी लैंग्वेज को प्रेसी लिखना, वापस अच्छे से आर्टिकल उसको पढ़ करके उसकी प्रेसी लिखना वापस, उसमें आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होती है। जो टॉपिक्स होते हैं उसको, कई टॉपिक्स होते हैं उनको आपको इलेबोरेट करना होता है। जैसे कोई याद नहीं, कोई एक न्यूज आ गई, वो छोटी सी न्यूज हो गई, उसको फिर इलेबोरेट करने के लिए वो एक अलग अलग फोल्डर में सेव कर दे कंप्यूटर के अंदर, उसको फिर आगे जब जब उससे रिलेटेड कोई भी नया टॉपिक आता रहे तो उसको ऐड करते रहो और फोल्डर को बढ़ाते रहो, करते रहो आपको उसमें। तो आपको बाद में जब आप एग्जाम लिखने जाओगे तो आपको शुरू से आज तक का उस टॉपिक के ऊपर आपको कंटिन्यूटी रहेगी उसकी। तो इसलिए एक पेपर आपने शुरू किया, एक मैगजीन जैसे इंडिया टुडे आपने शुरू की, या कोई से भी इस तरह से, तो उस तरह से कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए। कई सारे टॉपिक इंटरनेट में से आते रहते हैं, कई और आर्टिकल से आते रहते हैं, एडिटोरियल्स आते रहते हैं, उनको लेकर के आप उसको डेवलप करते जाइए और आप समझते जाइए, आगे बढ़ते रहिए। तो ये भी हैबिट उसके साथ में रखनी होती है। तो ये सारी चीज, जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया, उसके बाद में सिविल सर्विस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो कई सारे टॉपिक होंगे। जैसे आप मान लो फिजिक्स या केमिस्ट्री स्टूडेंट है, तो आपने आर्ट और कल्चर या हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपने पढ़ी नहीं होगी, तो वो फिर बाद में पढ़नी पड़ेगी। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो आपने साइंस और टेक्नोलॉजी आपने पढ़ी नहीं होगी। तो इस तरह से कई सारी चीजें आपको कवर पड़ती है। इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं सिविल सर्विस में कि उनको सभी को कवर करना पड़ता है, तो टाइम नहीं होता। इसलिए जो जो भी ऑप्शनल किया तो पूरा ढंग से करके चलो ये कंप्लीट हो गया, पेपर पढ़ा तो इसका ये टॉपिक्स, ये जर्नलिस्ट के ये कवर हो गए, इस तरह से कर करके आगे बढ़ना चाहिए। तो तो ये एक फाउंडेशन। एक तो अप्रोच होती है। दूसरा तीसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ उसमें कि देखिए कि ये 10 लाख स्टूडेंट जो अपीयर होते हैं और उसमें जो टॉपर होता है, फाइनली जो टॉप करता है, उसके पास में भी 24 घंटे का टाइम होता है, और जो लास्ट में रहता है, जो फेल होता है लास्ट में, उसके पास भी 24 घंटे होते हैं। फिर आप बताओ कि वो क्यों टॉपर बन गया और ये क्यों फेल हो गया। इसका कारण होता है कि टाइम जो है उसका आप कैसे यूटिलाइजेशन करते हो। इसलिए कि मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी को सक्सेस होना है तो एक ये फॉर्मूला है, हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन, कठिन परिश्रम सही दिशा में। सिर्फ कठिन परिश्रम करने से सलग नहीं होते हैं, सही दिशा में आपका एफर्ट होना चाहिए। तो कठिन परिश्रम सही दिशा में अगर कोई करेगा तो डेफिनेटली सक्सेस हो जाता है। तो इसलिए टाइम का आप यूटिलाइजेशन कैसे करोगे, वही आपका सक्सेस डिसाइड करेगा। तो इसलिए मैं सभी को यही करना चाहूंगा, जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको यही करना चाहूंगा कि पहले आप ये गोल अपना डिसाइड करो कि मेरे को सिविल सर्विस में आना है और ये मेरा टारगेट है, इसको ये सही दिशा ये है, ये पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है, ये टॉपिक्स मैंने लिए, ये पेपर्स ऑप्शन मैंने लिए है। फिर मैं हार्ड वर्क करके वो सारा कब तक कैसे पूरा करूंगा उसकी एक प्लान बनाए माइंड के अंदर, और फिर अगर हार्ड वर्क करे और घंटा घंटा पर पढ़ते रहे तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, दे कैन ऑलवेज गेट थ्रू।
सर आपने बताया कि हार्ड वर्क करना है बट एक राइट डायरेक्शन में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट सभी एस्पिरेंट के लिए भी है। सर कहते हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी होती है वो आपको बहुत हद तक एक ऑफिसर बनने के लिए तैयार कर देती। तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सर किस तरीके से एक एस्पिरेंट को इस एग्जामिनेशन की डिमांड समझनी है और उस हिसाब से तैयारी करनी है? नहीं, इसको मैंने तो बताया ये कि बस वैकेंसी उतनी ही होती है। अब ये तो है कि भाई आप कंपटीशन है, लाखों लोगों के बीच में कंपटीशन है, जितना आप ज़्यादा तैयारी करोगे उतने आपको सक्सेस के चांसेस ज़्यादा है, बस इसमें और कोई और क्योंकि ये तो बिल्कुल ईमानदारी से वहाँ पे वैल्यूएशन होता है, कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। यूपीएससी का एग्जाम आप जानते हैं, तो इसलिए एक ही तरीका है, मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके, प्रिपेयर करके, नई नई चीज़ें। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे तो भी वहाँ कुछ सीखोगे, और भी कई स्टूडेंट्स आएंगे उनसे आप डिस्कस करोगे तो और भी कई नई चीज़ें सीखोगे। सीखते रहो, प्रिपेयर करते रहो और अटेम्प्ट करते रहो आप। सर आपने भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जो कि बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को हेल्प कर रही। सो व्हेन डिड यू नहीं, डेवलप? मैंने yeah, I actually in my free time I used to write some. It is not actually books, but book type thing. I have not published yet, but I wrote it basically when my son was preparing. So some of my friends and students, I just to help, I wrote. These are some books you can see, the art and culture of India and the Indian economy, the modern India. इस तरह से 7-8 किताब मैंने लिखी। तो ये जो है ये अभी मैं इसको पब्लिश कराऊंगा, तब ये सभी अभी तो ये लिमिटेड कॉपी प्रिंट करके कुछ स्टूडेंट्स को मैंने दी थी, मैंने कहा कैसा होता, तो काफी अच्छा रेस्पॉन्स रहा। अब मैं इसको डेवलप करके और बाद में प्रिंट कर पब्लिश करूंगा मैं इसको। सर आपकी हॉबी के बारे में बात करें तो यू हैव एटिमोलॉजी एज योर हॉबी, सो कैन वी नो मोर अबाउट दिस हॉबी एंड व्हेन डिड यू फाइंड इट मोस्ट इंटरेस्टिंग? See, I right from beginning, I like say I go for shooting, I go for the trekkings, so many field activities. But when I'm at home or I'm sitting in the office or I'm traveling also, I always like etymology. Etymology is what is that? The origin of words. That is etymology. How the words originated. So I like to read more about the origin of the words, and I like it. So then how the language started and how this, the development of language, the development of pronunciation, then all the things I keep reading about that. But mostly about words, I like each word, how it originated, what is the originally, what was the meaning, from which language it came. Like you can see some books which I keep, you are seeing in the back, these are all books of etymology. From wherever I go in different countries in the world, I buy some books there, I bring on etymology. I myself write some books on etymology also. I have written one book. 1 second. Yes, I like to show you one book. Yes, this you can see catchphrases. Catchphrases, volume 1. I have written this. So catchphrases, that is what is the origin of catchphrases. So this is for only the catchphrases will start with A. This book is only for that. So like this, there will be 20 volumes. I don't know whether I will ever be able to complete, but I have completed. So this book I printed, not yet published, just printed and kept it as a proof. This thing gave to some copies to my friends for their opinion on this and that. So like that, this is etymology, and so the origin of the words. I also write on I am now preparing one book on origin of proverbs, English proverbs, how they originated. And this is a catchphrase. Similarly, on the words, origin of words. So it takes a lot of time, but then it's very interesting. I feel if you want to learn about the language, you should know about the words also, about the history of the words, then the catchphrases, then also about the proverbs, all the things you should know. Then it's very interesting field. Yes. सो वी विश कि जिस तरीके से आपने वॉल्यूम 1 लिखी, जल्दी आप वॉल्यूम 20 तक भी पहुंचे एंड यू पब्लिश ऑल दोस एंड वी गेट अ चांस टू रीड ऑल। Thank you. Thank you very much. सर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो यूपीएससी प्रिपरेशन में आ जाता है वो होता है इंटरव्यू का स्टेज। किस तरीके से एस्पिरेंट्स को अपनी तैयारी करनी है इंटरव्यू के लिए, किस तरीके से प्रेजेंट करना है वाइसली इंटरव्यू बोर्ड के सामने? देखिए, मैं ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि मैं कई बार मॉक इंटरव्यू में बैठता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पे चेन्नई में जो ये सिविल सर्विस में मेन में जो पास हुए उनका इंटरव्यू होने वाला, अभी इंटरव्यू पोस्टपोन हो गए सिविल सर्विसेज के,
यूपीएससी इंटरव्यूज, तो उसके लिए मॉक इंटरव्यूज हुए थे, हमने शुरू किए थे। तो मैं 2-3 इंस्टीट्यूट जाके मैं बैठा था वहाँ पे फॉर द मॉक इंटरव्यू के लिए। हर साल मैं ऐसे मॉक इंटरव्यूज करता हूँ। तो उसमें जो हर एक स्टूडेंट का जब मॉक इंटरव्यू करते हैं, तभी हम उसको बता सकते हैं कि अब इसमें क्या खामी है और आपको कैसे इम्प्रूव। हर एक स्टूडेंट का पूरा मॉक इंटरव्यू करने के बाद में हम उनको एक एक पॉइंट्स देते हैं, इसमें तुम्हारी क्या गलती थी या क्या अच्छा, और जो गलती है उसको आप हटा करके उसको कैसे इम्प्रूव करना उसके बारे में। तो ये चीज़ें हम उनको कहते हैं। बेसिकली ये होता है कि आपका जो है एक रिप्लाई करने का एटीट्यूड कैसा होता है आपका। नॉलेज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज भी है, सारी चीज़ें उसमें मिला के होती है, नॉलेज भी होना चाहिए आपको सब्जेक्ट का। फिर आप उसको किसी चीज़ को नहीं जानते हो तो आप उसका जवाब कैसे दे पाते हो, और उसको कैसे आप आंसर करते हो, उस जो जानते हो उसको कैसे प्रेजेंट करते हो आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इंटरव्यू एक, आई फील कि मतलब इंटरव्यू के लिए बहुत बड़ा लेक्चर दिया जा सकता है, इसके ब्रीफ में बता नहीं सकता मैं। लेकिन हर एक कैंडिडेट को मैंने देखा, अभी हमने 15 दिन पहले हमने जो मॉक इंटरव्यूज किए थे, तो हमारा पूरा बोर्ड था, मैं बोर्ड का चेयरमैन था, तो हमने देखा कि हर एक स्टूडेंट की अलग अलग चीज़ हमको कहनी पड़ी, हर एक स्टूडेंट में अलग अलग इंप्रूवमेंट के मेथड्स होने चाहिए थे उसमें। तो उस तरह से उनको देख के ही बता सकते हैं। लेकिन बेस्ट थिंग ये है कि आपका जो नॉलेज है उसको आप जो प्रेजेंट करते हैं बिना डरे हुए, बिना हिचके हुए, क्वेश्चन को आप समझें, पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको समझ करके, और उसको इसलिए एक ये कहा जाता है वाई द मॉक इंटरव्यूज आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि पहले जो मेन इंटरव्यू में जाने से, जो एक्चुअल इंटरव्यू में जाने से पहले इस तरह की अगर तैयारी की जाए, अपने जो जिन्होंने जैसे ऑफिसर्स है जिन्होंने यूपीएससी इंटरव्यूज फेस किए है, उनके साथ में बैठ करके अगर ऐसे मॉक इंटरव्यूज किए जाए तो उसमें अपने आप आपको गाइडेंस मिलता रहेगा कि कैसे आपने, क्या खामी है आपको और कैसे इंप्रूव करना है इसमें। तो उसमें क्या होता है कि जब जो जो चीज़ आप जानते हो उस चीज़ को आपको कैसे कंसाइज, आपको कैसे प्रेजेंट करना है बोर्ड के सामने, और जिस चीज़ को नहीं जानते हो उसको आपको कैसे उसके लिए बताना है कि आप नहीं जानते हो उसको। और कुछ चीज़ें होती है जिसमें जो आपको पूछते हैं बड़ा मतलब साइकोलॉजिकली आप कई बार डाउन हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल डाउन नहीं होना चाहिए आपको। आप बिल्कुल उसको स्माइलिंग फेस से फेस करके और उनको बता सकते हैं, जो भी आप जानते हो उस हिसाब से आप बता सकते हैं उनको। तो इससे ये बहुत एक नेचुरल तरीका होता है, जितना आप नेचुरल वे में आप प्रेजेंट करोगे उतना ही इंटरव्यू में आपको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। कोई आर्टिफिशियल ढंग से करना चाहेगा तो उसमें मार्क्स नहीं मिलते, उसमें नेचुरल ढंग से जो भी आता है बताते रहो, बिल्कुल जैसे नेचुरल में, जैसे घर में। उस दिन मैं जैसे आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हम एक बोर्ड में बैठे थे अभी रिसेंटली, टाइम इंस्टीट्यूट का जो टाइम नहीं हो, अभी जो अरम है, अरम इंस्टीट्यूट है समथिंग, उनकी जो एक शंकर इंस्टीट्यूट, या सॉरी शंकर इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे आईएएस सर्कल, उसमें हम एक बोर्ड में बैठे थे। एक दिन हमारे साथ में बैठे थे एक आईएएस ऑफिसर, वेस्ट बंगाल काडर के थे मेरे साथ में। उनका इंटरव्यू में 225 मार्क्स मिले हुए थे, बहुत हाई मार्क्स। तो यू आर टेलिंग कि साहब मेरे फादर ने, उनके फादर ने, तो ये फादर वाज आल्सो आईएएस ऑफिसर, ही सेड, ही टोल्ड हिम दैट वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में ऐसे बात करना जैसे घर में आप जो है आंटी और अंकल से बात करते उस तरह से बात करना, बिल्कुल ऐसे फ्री में बात करना, और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। उसने 2 बार इंटरव्यू दिया था, दूसरी बार आईएएस में सेलेक्ट हुआ, दोनों बार बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो इस तरह से आप जितना नेचुरल और फ्री रहोगे उतने मार्क्स आ जाते हैं, जितना ज्यादा आप आर्टिफिशियल होने की कोशिश करते हो मार्क्स चले जाते हैं आप। ये बेसिक चीज है। तो आप पढ़िए, खूब पढ़िए, हर एक टॉपिक, करंट टॉपिक, उसके ऊपर अपने व्यू बनाइए कि ये मेरा व्यू है, मैं इसको कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, और उसको बार बार प्रैक्टिस करना कि मैं ये पूछेंगे तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा, ये पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। इस तरह से माइंड में प्रैक्टिस होनी चाहिए। और लकी है कि ऐसे बोर्ड मिल जाए मॉक इंटरव्यू में, तो उसमें मॉक इंटरव्यू जरूर करने चाहिए और उससे सीखना चाहिए कि मेरे में क्या गलती हुई और उसको कैसे इंप्रूवमेंट करना है। Sir, we would like to have your some tips and suggestions for all the aspirants preparing for UPSC. As I told you already, it all depends upon where they stand today. Are they a graduate, or they are doing graduation, or they are in post-graduation, where they are, or they have completed a study and they are preparing for that. I would only say that they should make a thorough study of any topic they take. It should be thorough, exhaustive study. Don't go for shortcuts. No shortcut is permitted in UPSC. जो भी पढ़ना है डिटेल में उसको पढ़ें, टाइम तो लगेगा लेकिन डिटेल में पढ़ करके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। उससे रिलेटेड भले ही आपके पास 100 टॉपिक है, उसमें से 1-2 टॉपिक मिस भी हो जाए, मान लो आप 90 टॉपिक ही कवर करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन 90 टॉपिक वो ऐसा आप तैयारी कीजिए कि उसमें किसी तरह से कहीं से क्वेश्चन आ जाए, उसका आप आंसर दे सकते, यू शुड बी एबल टू गिव द आंसर। और वो तभी हो सकता है जबकि आपकी स्टडी जो है एग्जॉस्टिव, बड़ी डिटेल स्टडी आपके उसके बारे में हो। और उसके लिए आपको बिल्कुल
जो ऑथेंटिक मटेरियल आपको पढ़ना चाहिए, ये शॉर्टकट गाइड्स वगैरह ऐसे ना पढ़ें, एक तो। और दूसरा ये कि जो मेन एग्जाम देखने के बाद में जो इंटरव्यू के लिए है, तो वो तो इंटरव्यू की मैंने आपसे बात की, पहले प्रिपेयर करें उसके लिए। So we want to take your message for the youngsters. Okay, my message to the youngster is that, see this, there is, there is saying that for everything there is a time. There is everything, there is a time. That is, in our Indian culture, we ashramas. You are seeing that student life up to 25 years, grastashram, that's a family life, then संन्यासाश्रम एंड देन वानप्रस्थाश्रम। सो 25 साल की जो की हुई है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 25 साल की, पहले 25 साल की जो लाइफ है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, न केवल आपकी बल्कि आपकी जो जनरेशंस, आगे की जो आपकी पीढ़ियां हैं, उनकी लाइफ वहीं से डिसाइड होगी। इस 25 साल में अगर आप किसी गलत रास्ते में ना जाएं और आप सही बैठ करके हार्ड वर्क, बहुत आप एक तपस्या करें यहाँ पे, तो आपकी लाइफ एक दूसरे ढंग की बन सकती है। आगे आप खूब आराम कर सकते हो आगे, लेकिन यहाँ पे आपने आराम करना शुरू किया तो आगे फिर जिंदगी भर आपको भी सफर करना पड़ेगा और आपकी आगे वाली जनरेशन को भी सफर करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नई जनरेशन, आपकी जो यंगस्टर्स को, कि आप जो है कठिन परिश्रम कीजिए। इस पहले वाले 25 साल में जितना कठिन परिश्रम करोगे उसके अच्छे नतीजे निकलेंगे। तो हार्ड वर्क करके अच्छी से अच्छी, अगर आप सिविल सर्विस में ज्वाइन कर सकते हो तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं है। आगे की लाइफ अपने आप दूसरे ढंग की होगी। और अभी आपने जो है रेस्ट करना शुरू किया या गलत रास्ता में जाने लगे, दोस्तों के साथ में घूमना फिरना, फालतू में टाइम वेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि मैंने आपको बताया टाइम बहुत लिमिटेड है, तो उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो, एक एक मिनट आप कैसे यूटिलाइज करते हो, वही डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ आगे कैसे होगी। तो आई विल ओनली सजेस्ट दैट टाइम इज द लाइफ एंड प्लीज मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम। थैंक यू। Thank you so much, sir, for joining in today's session, sharing थैंक यू। your journey. और आपने बहुत सारे UPSC aspirants को guide किया, and it was truly a pleasure to have you. Thank you so much, sir, and we थैंक wish यू। you good health. थैंक यू। थैंक यू।